So we have completed the basic introduction of IC engine. We have seen all the performance parameters, terminologies, and nomenclatures which are commonly used. Performance parameters, in that we have seen 5 different types of efficiency: be it thermal efficiency, indicated thermal, mechanical, volumetric, then efficiency ratio. Other than these, we have mean effective pressure, mean piston speed, specific fuel consumption, fuel air or air fuel ratio, compression ratio, specific power output, calorific value, inlet wall, Mach index. These were the performance parameters that we have seen. Also, we have compared some different types of engines depending upon their performance. Today, we will be starting from the numerical part. These are the only numericals that will be there in our first unit. So let's start. Taking the first example, the cubic capacity of a 4-stroke over square SI engine is 245 cubic centimeter or 245 cc. The over square ratio is 1.1. The clearance volume is 27.2 cc. Calculate the bore, stroke, and compression ratio for the engine. What we have been given is a 4-stroke SI engine, which is a over square engine. Over square means the bore of the engine is greater than its stroke. That is, this ratio, over square ratio, what it is? It is basically D by L equal to 1.1. This ratio is given. Then cubic capacity is given. So we already know the cubic capacity means it is our swept volume or displacement volume. It is given as 245, and we calculate it by the formula pi by 4 d square L. Also, we have clearance volume, which is 27.2 cc. So we have to find out the bore, stroke, and compression ratio. So it's very simple. You can find out. You already have the ratio of D by L as equal to 1.1. I can evaluate this equation as L equal to D upon 1.1. Put this value of L in our swept volume formula. You will get the value of bore. Once I have got the value of bore, I can easily determine the length of stroke. When you have calculated D and L, compression ratio, the compression ratio formula is total volume upon clearance volume, or you can say it is 1 plus swept volume upon clearance volume. So by using this, you can find out the compression ratio. Just to do the calculation and tell me the answers, what answers you are getting. अब बहुत सिंपल है, तुम्हें स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ था, स्वेप्ट वॉल्यूम का अपने को फॉर्मूला पता है, डी बाय एल की वैल्यू अपने को दी हुई है, वहां से तुम डी और एल के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, क्लियरेंस वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करना है और आंसर निकालना है। इसमें जल्दी से निकालो, बताओ क्या आंसर है। कैलसी है सबके पास? कैलकुलेटर है सबके पास कि नहीं है? सर है ना, तो कैलकुलेट करो, वैल्यू बताओ। ठीक है सर।
जब मैं L की वैल्यू डालूंगा D बाय 1.1 इस स्वेप्ट वॉल्यूम वाली इक्वेशन में, तो मुझे D क्यूब मिल जाएगा और जो बोर की वैल्यू अपने को मिलेगी इट विल बी 7 सेंटीमीटर। जैसे ही मुझे बोर की वैल्यू मिल गई, उसके बाद मैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकाल सकता हूँ। जो रिलेशन दिया था उसी से, इट विल बी 7/1.1 विच विल बी 6.36 एंड कॉम्प्रेशन रेशियो इट विल बी VT बाय VC या फिर 1 + VS/VC। इसको तुम पुटअप करोगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 10। बहुत ही सिंपल वाला न्यूमेरिकल था, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बिल्कुल भी पूछी हुई नहीं थी अभी। अब इसमें एक और चीज हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, in this numerical, what it is mentioned as over square engine. Over square engine it was mentioned, that's why I have taken D by L as 1.1. Suppose it was mentioned under square engine. Suppose it was mentioned as under square engine. So in case of under square engine, the length of stroke is greater than our diameter of bore. So this 1.1 will be L by D equal to 1.1. So depending upon the type of engine, either it is under square or over square, you have to take the D by L or L by D ratio. So this particular can be a variation of such type of numerical. You can see such type of numericals in some small competitive exam for MCQ pattern. Then coming to the next one. The mechanical efficiency of a single cylinder 4-stroke engine is 80%. The mechanical efficiency of a single cylinder 4-stroke engine is 80%. What I have been given? I have been given with mechanical efficiency, that is eta m. It is given as 80%. The frictional power is estimated to be 25 kilowatt. That is FP. Value of FP is given as 25 kilowatt. Calculate the indicated power and brake power developed by the engine. You have to find out the value of indicated power and the brake power which have been developed. What is indicated power? Indicated power is the power or the energy which is supplied at the top of the piston surface, and brake power is the final mechanical output or final mechanical energy which we are getting from the IC engine. And the difference between these two, that difference is known as our frictional power. That is, you have been given IP minus BP as 25 and mechanical efficiency is given. So what is mechanical efficiency? Mechanical efficiency is brake power okay. We were discussing about the second numerical, that is, in this the mechanical efficiency is given. This mechanical efficiency means it is basically the ratio of our brake power to indicated power, which is given as 80% or 0.8. Then frictional power is given, and this frictional power is nothing but it is the difference between indicated power and brake power. That is the difference between the energy which was available to us on the piston for conversion purpose, and this is the energy or this is the useful mechanical output that we are getting from the engine.
So we have now two equations. One is our BP by IP equal to 0.8. Another one is IP minus BP equal to 25. Just determine both of these power, IP and BP, from these equation. Do the calculation and tell the answer. सिंपल चीजें थी भाई. सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी मुझे दी है, फ्रिक्शनल पावर दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ इंडिकेटेड और ब्रेक पावर अपने को निकालना है. तो दो इक्वेशन बनती है, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो कैलसी में जल्दी से और आंसर को निकालो. कौन बताएगा आंसर अभी? MEB 810 विकास धाकर. विकास बेटा क्लास में बोलोगे नहीं ना, मैं अटेंडेंस दूंगा नहीं तुम्हें. सर 12.5. 12.5. कोई गलती की है तुमने, देखो. सर 125 IP और 100 BP. 125 है अपना इंडिकेटेड पावर. इंडिकेटेड पावर आएगी 125 किलोवाट और गेट पावर तुम्हें मिलेगी 100 किलोवाट. बेटा जब भी आंसर बताओगे यूनिट हमेशा बतानी है साथ में. चलो यस सर. इसके बाद वाले पे आते हैं. इसके बाद वाला तुम लोग सॉल्व करके बताओ. A 42.5 kilowatt engine has a mechanical efficiency of 85%. Find the indicated power and frictional power. If the frictional power is assumed to be constant with load, what will be the mechanical efficiency at 60% of load? What you have been given, you have been provided a 42.5 kilowatt engine. 42.5 kilowatt engine means they have given us the value of gate power. What the mechanical output you are getting? The mechanical output which we are getting is 42.5 kilowatt and efficiency have been given as 85%. Okay. So from this I can find out indicated power, and once I have got indicated power I can determine our frictional power. Now in the second part he is saying if the frictional power is assumed to be constant. If the frictional power is assumed to be constant, that is whatever frictional power we are getting from this equation, take same frictional power but change the load as 60% of the total load. What you will be taking? The new gate power which you will be taking for the second part, it should be 60% of the actual load, and actual load is our 42.5. So new gate power will be 60% of 42.5 frictional power. Whatever you are getting from this equation, that you have to take, and depending upon these two, find out a new mechanical efficiency. सेम चीजें है, सेम अपना मैकेनिकल एफिशिएंसी वाला ही फॉर्मूला लगेगा. फ्रिक्शनल पावर का जो डिफरेंस है वही फॉर्मूला है. पहले उसने अपने को गेट पावर दे दी, उसके ऊपर बोला उसने इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड और फ्रिक्शनल पावर को निकालो. सेकंड केस में फ्रिक्शनल पावर जो तुमने निकाली है वही अपन मान के चलेंगे कि वही अपनी फ्रिक्शनल पावर है. बस तुम्हें जो गेट पावर अपनी थी, जो लोड अपना था, लोड तुम नया लोड जो लोगे वो होगा 60% ऑफ द एक्चुअल लोड
जो तुम्हारे पास दिया हुआ था 42.5 किलोवाट इंजन, उसका 60% अपने को लेना है और एक नई मैकेनिकल एफिशिएंसी अपने को निकाल के बतानी है। तो वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि अगर अपना लोड कम हो गया, लोड अपन ने क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया, 60% ऑफ लोड लिया, यानी क्या किया, जो एक्चुअल लोड मेरे पास था, जो एक्चुअल में ही मैकेनिकल आउटपुट बनने वाला था, उससे मैंने थोड़ा सा कम किया, उसका वो इफेक्ट पूछना चाहता है कि तुम्हारी एफिशिएंसी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो बताओ भाई, इंडिकेटेड पावर क्या आएगी, फ्रैक्शनल पावर क्या है यहाँ पे। बहुत इजी है ये, 2-3 सर न्यूमेरिकल काफी इजी है पहले के। Indicated सर power इंडिकेटेड पावर 50 किलोवाट इंडिकेटेड पावर और 50 किलोवाट, हाँ फ्रिक्शनल sir, पावर 7.5 किलोवाट। ओके। और अब sir, अपन क्या brake करेंगे, sir brake power at 60% load is equal to 25.5 kilowatt. 24.5। 25.5, 25. ठीक है। यस सर। और एफिशिएंसी क्या है फिर, Sir, efficiency एक मिनट सर 0.49 किलोवाट। 77.3% या 0.773. 77.3% will be the new efficiency। Yes sir. क्या किया हमने भाई, सबसे पहले सिंपल इंडिकेटेड पावर फ्रैक्शनल पावर अपन ने निकाल ली, एफिशिएंसी मुझे पता थी। उसके बाद जो उसने बोला था 60% लोड, उसके ऊपर मैंने ब्रेक पावर की नई कंडीशन ली और इस नई कंडीशन के ऊपर वापस से तुमने मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाली। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ठीक है, सिंपल थे यहाँ तक। ये तीनों सिंपल थे न्यूमेरिकल, डायरेक्टली कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट अभी तक आया नहीं इसमें, बहुत ही इजी हो गया, एकदम डायरेक्ट बेसिस पे हो गया ये। थोड़ा सा अपन इसका जो लेवल है वो अब अपन बढ़ाते, जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं या अपने मेन एग्जाम में जो अपने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा 8 लेवल बढ़ाते बस अपन। अब 4-stroke 4-cylinder diesel engine, a 4-stroke 4-cylinder diesel engine running at 2000 rpm develops 60 kilowatt of power. I have been given a 4-stroke 4-cylinder CI engine. RPM is given, that is the speed of engine is given, speed of crankshaft is given basically. It is 2000 revolution per minute and it is developing 60 kilowatt of power. That means this is our brake power. I have been given the brake power as, it is given as 60 kilowatt. Brake thermal efficiency is 30%, that is eta BTH, that is given as 30%, and calorific value of fuel is given as 42 megajoule per kg. 42 megajoule per kg. Engine has a bore of 120 mm, that is D equal to 120 mm, and a stroke of 100 mm, L equal to 100 mm. Take the density of air as 1.15 kg per meter cube and air fuel ratio as 15:1 and mechanical efficiency of 0.8. बहुत कुछ डेटा दे दिया, स्पीड अपने को दे दी, ब्रेक पावर अपने को दी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मुझे दी हुई है, कैलोरीफिक वैल्यू अपने पास है, एयर की डेंसिटी मेरे पास है, एयर फ्यूल का रेशियो भी है, साथ में उसने अपने को दी है मैकेनिकल एफिशिएंसी भी अब दे दी है, यानी 5 में से 2 एफिशिएंसी उसने अपने को दी हुई है। अभी वो कह रहा है कैलकुलेट दी फ्यूल कंजम्पशन इन kg per second. Calculate the fuel consumption in kg per second. Air consumption in meter cube per second. Then indicated thermal efficiency
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मीन पिस्टन स्पीड भाई 6 चीजें मुझे निकालनी है। सबसे पहले फ्यूल कंजम्पशन निकालना है, और फ्यूल कंजम्पशन उसने मुझे स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये जो तुम निकालोगे ये kg पर सेकेंड में ही होना चाहिए। एयर कंजम्पशन जो है वो उसने लिखा हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, यानी कि मुझे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकालना है एयर का, मुझे मास फ्लो नहीं निकालना है। कौन सा निकालना है? वॉल्यूम फ्लो निकालना है एयर का। फिर अपने को निकालना होगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ग्रेट मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मीन पिस्टन स्पीड। ठीक है भाई, सबसे पहले जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ मुझे दिया क्या क्या है। मुझे स्पीड उसने दी हुई है, ग्रेट पावर वो दिया हुआ है, ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी मेरे पास है, सीवी मुझे दिया हुआ है, CV is 42 मेगाजूल पर केजी। CV है अपने पास, इंजन बोर, इंजन स्ट्रोक, डेंसिटी ऑफ एयर 1.15 kg per meter cube, then air fuel ratio A by F, it is 15:1, and mechanical efficiency as 0.8, or you can say it is 80%, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 80%। सबसे पहला पॉइंट अपने को चाहिए फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन के लिए ये जो ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी है इसके फॉर्मूले को याद करो। ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी मेरा था एज द, इट वाज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी और यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी विच हैव बीन derived or which is our output to the input fuel energy in appropriate unit, and input fuel energy का मतलब क्या है अपना? It was mass of fuel per second into calorific value of fuel। ये अपन ने जब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स किए थे उसमें देखा था। तो ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी मेरे पास होती है eta BTH इक्वल टू ग्रेट पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, यानी मास फ्लो रेट इनटू CV ऑफ फ्यूल। तो पहला पॉइंट तो मैं आ गया कि मुझे ग्रेट पावर मुझे पता है, थर्मल एफिशिएंसी भी पता है, CV भी मुझे पता है। क्या नहीं पता? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट इसमें से आ जाएगा। पहला स्टेप तो हो गया। सेकंड उसने मुझसे पूछा था एयर कंजम्पशन। अब एयर कंजम्पशन के लिए उसने मुझे बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दी हुई है विच इज एयर फ्यूल प्रपोर्शन। भाई मुझे मास ऑफ फ्यूल मिल गया, मास ऑफ फ्यूल को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? एयर का प्रपोर्शन मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है उसने मुझे एयर का जो है मास फ्लो रेट नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है अपने को? वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर मुझे डेंसिटी पता है, डेंसिटी उसने मुझे दी हुई है एयर की, डेंसिटी अगर मुझे पता है तो मैं डेंसिटी के फॉर्मूले से वॉल्यूम जो है काफी आसानी से निकाल सकता हूँ। डेंसिटी होती है अपनी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी। तो मास किसका अपने को निकालना है? एयर का। एयर का मास कैसे निकालोगे? जो भी मास ऑफ फ्यूल मेरे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एयर फ्यूल रेशियो से। ये मुझे क्या देगा? ये होगा अपना मास ऑफ एयर इनटेक, मास ऑफ एयर कंजम्पशन जो है वो ये हो जाएगा। अब उसने मुझे एयर की डेंसिटी दी है, इसमें एयर की डेंसिटी जो है वो डिवाइड कर दो, इट विल बी योर एयर कंजम्पशन इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तुमने फ्लूइड का कंसेप्ट भी उठा के यहाँ पे लगाया। कौन सा कंसेप्ट? डेंसिटी वाला। अभी आगे जब अपन जाएंगे ना, फ्लूइड में अपन ने डेफिनेशंस देखी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट अपना क्या होता है, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, वो सब चीजें भी अभी न्यूमेरिकल में आ जाएगी। अभी अपन आगे जो एग्जांपल देखेंगे उनमें वो चीजें भी आ जाएगी। ठीक है,
तो पहला अपना आ गया फ्यूल कंजम्पशन हो गया, एयर कंजम्पशन भी अपना हो गया। फिर आते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पे। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर अपॉन इनपुट फ्यूल एनर्जी, यानी कि एमएफ इंटू सीवी। अब तुम्हारे पास इंडिकेटेड पावर जो है वो नहीं है, क्या है? वेट पावर अपने को दी है, लेकिन उसने मुझे मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड की हुई है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्योंकि मेरे पास प्रोवाइडेड है, मैं क्या निकाल सकता हूँ उससे? इंडिकेटेड पावर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है अपनी? बीपी अपॉन आईपी। तो आईपी को अपन क्या लिख देंगे? इट विल बी बीपी अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी, दैट इस इक्वेशन को मैं लिख दूंगा बीपी अपॉन मास फ्लो रेट इंटू सीवी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहां से तुम्हारा थर्ड वाला जो पॉइंट है वो भी आ जाएगा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का। चलो पहले इतना निकालो। सबसे पहले क्या निकाल लोगे? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट के लिए सिंपल, सबसे पहले अपन फ्यूल कंजम्पशन निकालेंगे। वेट थर्मल एफिशिएंसी का मुझे फॉर्मूला पता है, उसमें एक ही अननोन है मेरे पास, वो है फ्यूल कंजम्पशन। तो सभी वैल्यूज पुट अप करूंगा, मेरे पास फ्यूल कंजम्पशन जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले एयर कंजम्पशन जब निकालना है तो मैं सबसे पहले मास ऑफ एयर निकालूंगा। मास ऑफ एयर कैसे निकाल लेंगे अपन? मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय एयर फ्यूल प्रोपोर्शन जो मुझे दिया हुआ है, और क्योंकि इसने मुझे मीटर क्यूब पर सेकंड में पूछा था, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? एयर की डेंसिटी से। एयर की डेंसिटी से अपन ने इसको डिवाइड किया, तो मैं एयर कंजम्पशन मिल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब ये जो एयर कंजम्पशन तुम्हें मिला, ये टोटल एयर कंजम्पशन मिला है, टोटल इंजन का मिला है। अब उसने कहा था 4 सिलेंडर इंजन है, तो तुम चाहो तो पर्टिकुलर हर एक सिलेंडर में से भी निकाल सकते हो। हर एक सिलेंडर में से निकालना है, कुछ मत करो, सिंपली उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो तुम्हारे पास इंडिविजुअल चारों सिलेंडर में, हर एक सिलेंडर में इंडिविजुअल कितना एयर कंजम्पशन हुआ है वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एयर कंजम्पशन आ गया। उसके बाद तुम्हारा क्या निकालेंगे? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड पावर मुझे पता है, वेट पावर अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी पता है, इंडिकेटेड पावर अपॉन मास फ्लो रेट इनटू सीवी ऑफ फ्यूल। तो अपनी क्या आ जाएगी वहां पे? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इतनी कैलकुलेशन करो पहले ये 3 पॉइंट के, फिर आगे बात करते हैं अपन। तुम्हें जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ना, वो इस टाइप का आएगा। काफी सारा डेटा दिया होगा, वो 5-6 वैल्यू अपने को निकालनी होगी। तो सपोज जैसे अपनी 20 मार्क्स की ये यूनिट आने वाली है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 20 मार्क्स में सीधे एक न्यूमेरिकल उठा के वो अपने को दे दे, बाकी कुछ पूछे ही ना। क्या दे देगा? सीधे एक न्यूमेरिकल जो है वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। तीनों का कैलकुलेशन करो। सबसे पहले मास फ्लो रेट फ्यूल कंजम्पशन का, फिर एयर कंजम्पशन, उसके बाद इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का। फिर बाकी 3 पॉइंट बताता हूँ, बाकी 3 अपने को कैसे निकालना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो बढ़ा लो अपनी, आगे जिनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है। कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो इम्प्रूव करो। तुम्हारा जो कैलकुलेटर दिया है उसमें बहुत से शॉर्टकट्स हैं, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। डायरेक्टली कोई इक्वेशन टाइप करो, कोई इक्वेशन जो है वो भी वहाँ पे सॉल्व होती है।
चलो ये तो ठीक है, सिंपल चीजें है। फ्यूल कंजम्पशन डायरेक्ट तुम्हारे फॉर्मूले से निकल आएगी, ग्रेट थर्मल एफिशिएंसी से। एयर कंजम्पशन, एयर फ्यूल रेशियो मेरे पास है, उसमें मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई करो, एयर कंजम्पशन मिलेगा, उसको डेंसिटी से कन्वर्ट, डेंसिटी से डिवाइड करो, तुम्हें वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर जो है वो मिल जाएगा। तो क्या किया, पर सिलेंडर उसको निकाल दिया, एंड फाइनली अपन ने इंडिकेटेड पावर और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे निकाली। अब अपने को चाहिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ volume flow rate of air into the intake system to the volume which is displaced by the system. So volume flow rate of air into the intake system, ये मैंने निकाल लिया है पहले ही। एयर कंजम्पशन जो है वो मैं निकाल चुका हूँ कि कितना एयर जो है, हाउ मच एयर इज, हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज गेटिंग इनटू आवर intake system, that I know. What we have to find now, we have to find out the volume flow rate of air corresponding to the displacement volume or the volume of air that is displaced by the system. The volume which is displaced by the system of air, वो अपन निकाल सकते हैं by density into volume displaced multiplied by n by 2. n by 2 in case of 4-stroke, or multiplied by n in case of 2-stroke engine. So we have, it may be simplified further, density into displacement volume. Displacement volume will be pi by 4 d square L. D and L, both the values I know. Then n is our speed, which is 2000 rpm upon 2 into 60. Why multiplied by 60? This is revolution per minute. I want to convert it into revolution per second. Why? Because the volume flow rate of air, I find out it in unit meter cube per second. So we have to take unit conversion into consideration. जो मैंने वॉल्यूम फ्लो रेट जो है, जो इंटेक सिस्टम में जाने वाला है, वो मैंने किस में निकाला है, मीटर क्यूब पर सेकंड में। भाई तुमने जब उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाला है, तो ये जो वॉल्यूम अपना डिस्प्लेस होगा, ये भी मुझे किस में निकालना होगा, पर सेकंड वैल्यू में ही निकालना है। तभी तो वो एफिशिएंसी में सेम यूनिट्स आके वो यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी अपनी। तो यूनिट कन्वर्जन का जो है अपने को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास जैसे ही आ गई, भाई इसमें क्या करना है, डेंसिटी को अपने को पुटअप कर देना है, डेंसिटी डाल दो, तुम्हारा पाई बाय 4 डी ओ एल की वैल्यू अपने पास है, स्पीड की वैल्यू है, इसको पुटअप करके अपन सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने पे जैसे ही तुम इसको डिवाइड कर दोगे एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट से, तुम्हें मिल जाएगा अपना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर कोरिस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी अपनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। फिर उसने पूछा था मुझसे ब्रेट मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब ब्रेट मीन इफेक्टिव प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला था अपने पास, इट वाज PBM equal to 60,000 into BP upon LANK। BP ब्रेड पावर मेरे पास अवेलेबल है, L लेंथ ऑफ स्ट्रोक ये भी अपने पास अवेलेबल है, A अपना क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन भी अपने को अवेलेबल है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी तुम्हें दिया हुआ है, आसानी से निकाल सकते हैं। N is our number of power stroke, which is N by 2 for 4-stroke IC engine, and K is number of cylinder। K क्या होता है अपना नंबर ऑफ सिलेंडर।
अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम चीज दी हुई है, हालांकि ये जो 60 है, यहाँ पे एक और 60 आना चाहिए था, ये उन्होंने नीचे लिख दिया, नहीं तो बाकी चीजें जो है वो सेम है। सेम यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो बस वैल्यूज को पुटअप करना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेट मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा, जो कि पहले आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसको तुम बाद में बार में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और चीज जो उसने पूछी थी, वो पूछी थी